Good morning, everyone. Hope so that you all are at your house. So today we are going to start our social and political portion, and in that we are going to start with chapter number 20, understanding the diversity. We will start with the glossary portion, starting from the first one, which is the constitution. Constitution मतलब क्या होता है? Constitution means the supreme law of the land. It lays down the framework defining fundamental political principles and the structural procedures, powers and duties of the government. It means कि constitution जो है वो हमें बताता है that what are the duties of the government, how the government should run, what is the supreme court and how do they framework all the political principles, structures, procedures, powers, duties, everything. So that is known as an constitution. Moving to the second one, which is the secular country. Secular country मतलब कि एक ऐसा country, a country in which all religion enjoys all respect. मतलब कोई भी religion का इंसान हो उसे सारे प्रकार की respects मिलती है. Every religion have equal respects and there is no stable religion. Means everyone are not forced to have one religion. सब लोगों को force नहीं किया जाता एक religion करने के लिए. Moving to the next one, prohibition. Prohibition मतलब कि किसी भी चीज़ को forbidding करना, मतलब कि उसे बंद कर देना by something by the law, means that should not be practiced further. Opportunity. Opportunity means time or set of the circumstances that makes it possible to do something. Means that they are getting an opportunity, they are getting a chance to do something. That is known as an opportunity. Employment. State of having paid work. Means that if anyone is doing job and if they are being paid for that, then that is known as an employment. Abolition. Abolition means the act of an abolishing a system. मतलब किसी भी system, practice या institution को abolish कर देना, उसे बंद कर देना. इक्वालिटी. इक्वालिटी मीन्स एक स्टेट जिसमें सब इक्वल होते हैं, किसी को कोई स्पेशल स्टेटस, राइट्स या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है. एडप्ट. एडप्ट मतलब कि किसी भी न्यू चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसे मॉडिफाई करना. इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मतलब कि एक कैपेसिटी जो कि एक कैरेक्टर, डेवलपमेंट या बिहेवियर के किसी में दिखता है और जिससे दूसरों को इफेक्ट होता है, दैट इज नोन एज एन इन्फ्लुएंसिंग. एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि हैविंग एन एक्ट ऑफ एन सेल्फिशली मतलब कि किसी भी चीज़ का सेल्फिशली काम करना, दैट इज नोन एज एन एक्सप्लॉयटेशन. किसी का फ़ायदा उठाना, दैट इज नोन एज एन एक्सप्लॉयटेशन. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 20. दिस वाज द ग्लोसरी फॉर चैप्टर नंबर 20. ओके, सो हियर इज चैप्टर नंबर 20, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. इस चैप्टर के अंदर हमें पता चलेगा दैट व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी कैसी है और कितने टाइप्स की डाइवर्सिटीज़ होती है, एंड हाउ डज द डाइवर्सिटी अफेक्ट्स अवर लाइफ. डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट्स आते हैं. दैट नाउ हियर इज़ अ न्यूज़ मेकर जिसमें हमें डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर के बारे में दिया है. वी ऑल नो दैट हु इज़ डॉक्टर आम्बेडकर. आपको पता है ना दैट हु इज़ डॉक्टर आम्बेडकर. We all know is Dr. Ambedkar. He was a scholar, a social reformer and a leader who has already dedicated his life for ending social inequality. उन्होंने जो इंडिया में हमारे social inequality है उसे stop करने के लिए he have already tried a lot more. He is considered as the father of the Indian Constitution. Indian Constitution के father की तरह हम उसे contribute करते हैं. And for his contribution as a chief architect in the Indian Constitution, he was a chief architect for the Indian Constitution. His family was from महार कम्युनिटी एंड हु वाज बीन ट्रीटेड सो कॉल्ड अनटचेबल्स इन दोज डेज. उस टाइम में उनकी जो फैमिली थी जो कि महार कम्युनिटी की थी, उन्हें वो अनटचेबल काउंट करते थे क्योंकि अछूत मानते थे उस टाइम पर. वो उन्हें छूना भी पसंद नहीं करते थे. ही वॉज बिलोंगिंग टू सच अ बैकवर्ड फैमिली. इन स्कूल्स ही हैज फेड एंड लॉट ऑफ अ ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव होना. उन्होंने बहुत सारा भेदभाव सहा था अपने स्कूल डेज के लिए. स्कूलमेट्स जो थे वो उनके साथ बैठना नहीं पसंद करते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे और टीचर्स भी उनकी नोटबुक को भी टच नहीं करते थे. सो ही हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल रिलेटेड टू द अनटचेबिलिटी एंड चैम्पियन ऑफ दिस कॉज सो कॉल्ड लोअर कास्ट. और उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, मोकनायक एंड बहिष्कृत भारत और एडवोकेटिंग सोशल इक्वालिटी. सो उनका बहुत ही बड़ा यू कैन से दैट ही इज़ हैविंग अ वेरी वेरी बिग part for removing discrimination, untouchability and giving everyone the social equality. This was a really huge respect for Sir Ambedkar. सो हियर इज़ अ ग्लैंस जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया. डाइवर्सिटी इन इंडिया क्या है.
तो हमारे पास 4 टाइप की डाइवर्सिटीज़ है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल 2 डाइवर्सिटीज़ देखेंगे, बाकी की 2 हम लोग बाद में देखेंगे, मीन्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, टोटल 6 डिफरेंट फिजिकल डिविजन्स होते हैं और डिफरेंट फूड हैबिट्स भी इसके अंदर आ जाती है एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड कस्टम्स ऑल्सो कम इनटू द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। नाउ कम्स द इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, मतलब दैट दे आर हैविंग अ डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द फर्टाइल एरियाज, फिशिंग प्रैक्टिस इन द कोस्टल एरियाज एंड रेयरिंग शिप्स एंड याक्स इनटू द हाई हिल्स। रिलीजियस डाइवर्सिटीज के अंदर आएगा, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड इट इज द होम फॉर द many religions, means there are Hindu, Islam, Buddhism, Sikhism and Christianity, means there is a lot many divisions over here. Cultural diversity means often it reflects related to our festivals, our customs, means our riti rivaj, dance forms and related to all. We will discuss about this and most probably all of them. Okay, so here is a warm up exercise. Let's solve it out. How many students are there in your class? You know how many students are there. Are they all alike? मतलब आप सब सेम हो? How are they different? अगर आप सेम नहीं हो तो कैसे अलग हो? आप अपने क्लासमेट से बात कीजिए और इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए. ओके, दिस इज अ वार्म अप एक्सरसाइज. द फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास. तो आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उतना आपको लिखना है. इन योर क्लास देयर आर 45 स्टूडेंट्स. द नंबर ऑफ द बॉयज इन माई क्लास एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स. यू हैव टू राइट डाउन द नंबर ऑफ द बॉयज एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स. माई क्लासमेट comes from the different states of the India, some of the states. बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे क्लासमेट्स आप लोगों के अलग अलग स्टेट से आते हो. मैनी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, मैनी अदर प्लेसेस. तो आप उधर स्टेट्स के नाम लिखोगे. एंड मैनी लैंग्वेजेस योर क्लासमेट्स ऑल्सो नो एंड दे स्पीक एट देयर होम. सो विच आर दैट लैंग्वेजेस? यू हैव टू राइट डाउन दैट ऑल्सो. So here is further our chapter started over here. Look around your classroom. You will find that no one looks exactly like someone else. आप अगर क्लासरूम में देखोगे तो सब लोग अलग अलग दिखते हैं. No one is looking like, मतलब दोनों एक जैसे बहुत कम दिखते होते हैं. In addition, each student hails from a different family and cultural background. सारे स्टूडेंट्स एक अलग फैमिली और अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं. स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट एकेडमिक कैपेबिलिटीज, फूड हैबिट्स, रिलीजियंस, फेथ्स, कम्युनिकेशंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं सब लोगों के में अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है. फूड हैबिट सबकी अलग होती है, सबके रिलीजियंस अलग होते हैं और सब लोगों का कम्युनिकेशन भी अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है. इट इज़ अ क्वाइट पॉसिबल दैट द रेस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू मे बी डिफरेंट from you in many ways. You know that it is a fact that very different people or the things exist within a group or a place. ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, आपके आसपास के लोग सब लोग अलग अलग रिलीजन से, they are already different from you, but it's not a big problem. We can solve it out. Many times it happens that in a group it happens. What is diversity? Diversity क्या है? Diversity means the quality or state of being different or varied. Diversity मतलब कि अलग होना. अलग होना means that they are having a different, but it can be in many other ways. We must therefore understand the respect the fact that each individual is unique and therefore different. The difference can be in terms of race, gender, religion or political beliefs and so on. सारे इंसान अलग है, but every individual is an unique, but we should, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुड नॉट, वी मस्ट रिस्पेक्ट दैम बिकॉज दे एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक. वो अलग होंगे आपसे, नो डाउट, बट दैट डजंट मीन दैट दे डजंट नीड रिस्पेक्ट. उन्हें भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है. वो अलग आपसे, चाहे रेस में हो, कोई जेंडर में हो, कोई रिलीजन में हो, कोई पॉलिटिकल बिलीव्स में हो, वो किसी भी तरीके से आपसे अलग हो, बट दे ऑल हैव रिस्पेक्ट. दे ऑल शुड गेट रिस्पेक्ट. डाइवर्सिटी इन इंडिया. हमारे एंशियंट टाइम से, सिंस द एंशियंट टाइम, पीपल फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन कमिंग टू द इंडिया एंड सेटलिंग डाउन हियर फॉर वेरियस रीजंस. पहले से ही बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं और यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं. डिफरेंट रिलीजन्स हैव डेवलप्ड डाइवर्स एंड यूनिक कल्चर्स ऑफ देयर ओन. टू अंडरस्टैंड हाउ जियोग्राफिकल फीचर्स और द हिस्टोरिकल फैक्टर्स शेप द कल्चर ऑफ द प्लेस, लेट अस एग्जामिन द वेज लाइफ ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया. बहुत सारे लोग पहले से यहाँ पर आकर सेटल्ड होते थे एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर हैविंग एन सो यूनिक कल्चर्ड एंड डाइवर्स अवर कंट्री. बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स और हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी है जो कि हमारे कल्चर को शेप आउट करते हैं. एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया से
लोग आते हैं इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ होती हैं। यहाँ पर हमें मतलब एक इमेज दिया गया है जिसमें पीछे इंडिया ड्रॉ किया गया है और यहाँ पर सारे अलग अलग पीपल दिए गए हैं जिन्होंने का कॉस्ट्यूम्स अलग अलग है, सो दैट वी कैन गेट आइडिया दैट दिस इज़ द हाउ दिस इज़ अबाउट द गुजरात, गरबा के लिए जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स है वो है। दिस इज़ ऑफ पंजाब, दिस इज़ ऑफ केरला एंड दिस इज़ ऑफ वेस्ट बंगाल। So this shows that how diverse our country is. Moving to the geographical diversity, you know that there are main 6 divisions of the country. वो हम लोग geography portion में पढ़ेंगे. That the northern mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, the coastal plains, the peninsular plateau and icelands. ये जो है ये 6 main physical divisions है हमारे country के. यहाँ पर हमें geographical diversity दिखाई गई है हमारे इंडिया की. People adapt their lives to the geographical areas in which they live. वो ऐसी ज़िंदगी मतलब अडेप्ट करते हैं जहाँ पर वो रहते हैं उस हिसाब से होती है. इट्स ऑब्वियस कि अगर आप वहाँ पर कहीं पर भी रहते हैं तो वो उस हिसाब से ही होगी. Not only does it make people dress differently, but it also determines the kind of the food that they eat, what they do for living and customs they follow. वहाँ पर रहने से सब अलग नहीं हो जाता है, सिर्फ उनका कपड़े अलग नहीं होते हैं. There is a many lot more things that is different. Their food is different. उनका खाना अलग होता है. What they do for a living and the customs they follow. वो रीति रिवाज, वहाँ का रहन सहन सब अलग हो जाता है. People living in a different religion also have different food habits. अगर उनका religion अलग मान लो, उनके food habits भी अलग ही हो जाती है. In cold places such as Kashmir, people eat meat and milk products, especially in winters, as few crops are grown there. अभी जब हम बात करें कश्मीर की, जो जहाँ पर ठंडी हुआ करती है, तो लोग वहाँ पर मीट खाते हैं और मिल्क पीते हैं ज़्यादातर और मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं क्योंकि विंटर्स मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर ठंडी होती है तो बहुत कम क्रॉप्स होते हैं जो ठंडी में ग्रो होते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न दे ईट मीट मोस्ट प्रोबेबली. पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, मतलब कि जो सी के पास रहते हो, दे ईट राइस, फिश एंड कोकोनट, क्योंकि वो लोकली वहाँ पर मिल जाता है. ओशन के पास रह रहे, सी के पास रह रहे, जहाँ पर ज़्यादा पानी है तो राइस ग्रो करना इजी हो जाएगा. सो दे मोस्ट प्रोबेबली ईट राइस. ओशन में से फिश मिल जाएगी तो सो दे विल ईट कुक एंड फिश एंड कोकोनट. दे विल ऑल्सो ईट कोकोनट बिकॉज कोकोनट इज बीन ग्रोन ऑन द कोस्टल प्लेसेस. सो इट विल बी वेरी इजीली फाउंड फॉर दैम एंड दे विल इजीली फाइंड इट आउट एंड हैव इट. द फूड इज ऑल्सो कुकड विथ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस. वो बहुत सारे स्पाइसेस से भी फूड को कुक करते हैं. दे आर ऑल्सो कुकिंग विथ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस. So let's keep it today for here. हम लोग next lecture मतलब in our next video I will explain you about an economic diversity, religious diversity and cultural diversity. So we will discuss about it in our next one because ये chapter बहुत ही ज़्यादा छोटा है. It is just of you can say 2.5 page. उसमें भी diagrams और वो सब आ रहे हैं, images और, so it is approximately of 2 page. So we will discuss this in our next one. Okay. So goodbye everyone. Be safe at your houses.